وہ تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم اسپرے کرتا نظر آیا، جو آج بھی پہلے ہی دن سے ہینڈسم اور وجاہت کا جیتا جاگتا شاہکار تھا۔ بالوں میں برش پھیرتے شیشے کے عکس سے التمش سلطان افندی نے اپنی شریک حیات کو فان کلر کی ساڑی میں اپنی جانب آتے دیکھا، جو پہلے دن سے اس کے دل کی سب سے اونچی مسند پر آج تک بڑی شان سے براجمان تھی۔ وہ جو اس کی زندگی تھی، زندگی کا حاصل تھی۔ مہاپارا جو کانوں میں اپنا آویزہ درست کرتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ التمش کی پہلے دن سی آنکھوں کی محور سے چھلکتی آتشی سی لپک دیکھ اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکی۔ ماشاء اللہ، چشم بدور میری جان، یوں لگتے ہے جیسے یہ 27 سال آپ کو چھو تک نہیں گزرے۔ ہاں، لیکن اس بڑھتی عمر نے ہماری دیوانگی میں دن بدن اضافہ ضرور کیا ہے۔ وہ پلٹ کر انتہائی والہانہ پن سے اسے باہوں کے حصار میں قید کر گیا۔ حد کر دیتے ہیں آپ بھی التمش، شرم کریں، 4 جوان بیٹوں کے باپ ہیں آپ، دادا بننے کی عمر ہے اور ابھی بھی ٹین ایج سڑک چھاپ لڑکوں کی طرح عاشقی بکھار رہے ہیں آپ۔ وہ بگڑ کر بولی تو اس کی شرم و حیا کی شدت کو غصے کے پہرائے میں چھپائے جانے کے ادا پر ہمیشہ کی طرح گہرا مسکرایا۔ 4 جوان بیٹوں کے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنی ذاتی ایک اکلوتی بیوی سے رومانس بھی نہیں کر سکتا؟ اس نے بظاہر اچھا خاصا برا منایا تھا۔ دن دہاڑے شتر بے مہار یوں کون رومانس بکھارتا ہے؟ چھوٹی سی ناک چڑھاتی خفا ہوئی۔ براوو، مطلب رات میں رومانس کے لیے کنونس ہو رہی ہیں آپ؟ اس کے اس قدر بے باک سرگوشی پر مہاپارا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تو وہ دلکشی سے قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ التمش! مہاپارا نے دانت پیسے۔ التمش نے جھک کر تمام تر شدت سے اس کی پیشانی پر ایک عقیدت بھرا بوسہ ثبت کیا۔ ایک شعر سنیں، بڑی مشکل سے گوگل پاجی سے پنجابی میں سیکھا صرف آپ کے لیے۔ چن ویکھاں یا تیرے ول، دوہاں پاسے ایک ہی گل۔ التمش نے مسکراتے شعر پڑھا تو سرخ قندھاری چہرہ لیے وہ سر جھکا گئی۔ ابھی جواب میں کچھ کہتی جب حسب معمول کمرے کے بند داخلی دروازے کے باہر سے 2 بھاری آوازیں ایک زبان ہو کر سنائی دی۔ چاند کے ٹکڑے، او میرے چاند کے ٹکڑے، صدقے میرا چاند کا ٹکڑا کہاں چھپ گیا ہے؟ باہر سے التمش سلطان کے بڑے دونوں بیٹے چلاتے حسب معمول اسے بری طرح چڑھا گئے تھے۔ یہ الو کے پٹھے آج میرے ہاتھوں نہیں بچیں گے۔ التمش نے دانت کچکچاتے ہوئے اسے اپنی باہوں سے آزاد کیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی تو ایک عدد گھوری سے اسے بھی نواز ڈالا۔ اپنے آپ کو گالی سے نواز رہے ہیں آپ؟ مہاپارا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ تبھی وہ تیسری دستک کے بعد کمرے میں آن دھمکے تھے۔ ماشاء اللہ، بآواز بلند کہتے دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ماں باپ کی آئیڈیل جوڑی کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ ان کی نظر اتاری تھی۔ مگر پیدائش کے بعد سے ہی اپنے ہینڈسم ابا کا دل جلانا بھی تو ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا نا۔ دونوں نے آ کر مہاپارا کے کندھوں پر ٹھوڑی رکھتے ماں کے گرد لاڈ سے اپنے مضبوط بازو حمائل کیے۔ ماشاء اللہ، لگتا ہے زمین پر حوروں کا مقابلہ حسن چل رہا ہے، تیار ہو کر وہیں جا رہی ہو نا پارو؟ بازل التمش سلطان نے ماں کی کمپٹی پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ سیاہ آنکھوں میں بے شمار شرارت بھری چمک تھی، اس لیے دانتوں تلے لب دبایا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ بی ان یور لمٹس بازل التمش سلطان۔ التمش سلطان نے اپنی کلائی میں رسٹ واچ پہنتے مصنوعی ناگواری سے اپنی 26 سالہ بیٹی کو خونخوار گھوڑی سے نوازا۔ مما، یعنی پارو جانی، آپ نے آج تک اپنے اس قدر حسن کا راز بتایا نہیں اور نہ کبھی یہ بتایا کہ اس قدر ہینڈسم بیٹے کو کیا کھا کر پیدا کیا۔ شہزل کی بآواز بلند سرگوشی مہاپارا ہمیشہ کی طرح گڑبڑا گئی۔ شہزل کے منہ پر پڑنے والے مکے سے اس کا منہ گھوم چکا تھا، اس لیے وہ ناٹک کرتا بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ مہاپارا اور بازل سلطان قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ مما جانے یار، آپ کو کیا پڑی تھی اتنے سڑیل بندے سے شادی کرنے کی؟ شہزل اب تکیے پر مکے برستا جھنجھلا کر بولا۔ وہ دونوں جو باہر بے تحاشا ڈیسنٹ، سوبر اور سنجیدگی اپنے اوپر اوڑھے رکھتے تھے، جن کی طبیعت میں ایک الگ قسم کا ٹھہراؤ اور قدرے سٹ پن سا تھا، وہ اپنی ماں کے کمرے میں آتے ہی بچے بن جاتے تھے۔ اس سڑیل بندے کی پروڈکٹس مطلب سڑی ہوئی شکلیں ہی ہوں گی، التمش نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ مہاپارا کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے، اس لیے بیڈ پر بیٹھ کر بیٹے کے منہ پر ہاتھ جما دیا کہ وہ پھر سے کوئی شوشہ نہ چھوڑ پائے۔ ویسے چاند کے ٹکڑے، بازل نے اپنے ماں کو کچھ کہنے کو منہ کھولا۔ ڈونٹ یو ڈیئر بازل سلطان، اتنے بڑے گھوڑے ہو گئے ہو دونوں، لے آؤ میری بہویں، پھر اپنی والیوں کو چاہے چاند کے ٹکڑے کہنا یا سورج کی کرنیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن تم لوگوں کی ماں کو صرف میں اس طرز تخاطب سے مخاطب کر سکتا ہوں۔ یو بوتھ گیٹ دیٹ؟ کیا مطلب؟ میں تو آپ کے آسے پر بیٹھا ہوں اور آپ سارا ملبہ ہم پر گرا رہے ہیں۔ شہزل چیخ اٹھا جیسے برسوں سے چٹ منگنی
और ब्याह रचाने का जुनून सर पर सवार था। सारे डब्बा दे दिया न, पानी सूख गया हुआ, कोई शर्मो हयाई कोई नहीं पियो पुत्रानु। माँ पारा ने दांत पीस कर कहा तो तीनों बाप बेटे कहका लगाकर हंस पड़े थे। डैड, ट्रांसलेशन प्लीज। बादल ने कान खजाते बाप की जानिब बेचारगी से देखा। कसम से मम्मा जानी, बचपन से लेकर अब तक कभी आपकी पंजाबी की एक लफ्ज़ की समझ नहीं आई, मगर आप बोलती हुई इस कदर क्यूट और प्यारी लगती हैं कि हद नहीं। शाहज़ ने लाड से पारो के गले में बाजू डाले तो वह मुस्कुरा दी। अल्तमश और बादल भी हंस दिए थे। जो कपाट, तो क्या आप लोगों ने सचमुच हमारे लिए अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं की? मम्मा जानी, आपने भी नहीं? शाहज़ल अल्तमश सुल्तान का सदमा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ अपने लिए लड़कियाँ तुम खुद पसंद करो। पारो ने उसके मुंह पर चिपत रसीद की। पारो ने साफ इनकार किया। जानती जो थी अगर इसने कभी झूठे मुंह भी बोल दिया कि लड़कियां उसे उनके लिए पसंद की हैं तो उसके बेटे अपनी पसंद और नापसंद का ख्याल तक ना करेंगे और उसके फैसले पर समझौते के तहत सर तस्लीम खम कर देंगे। लेकिन वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी कि ज़िंदगी तो आखिर उन्होंने ही गुजारनी थी। लेकिन मैं तो चाहता था हमारे लिए लड़कियां आप ही सिलेक्ट करें मम्मा। शाहज़ल ने माँ को आस भरी निगाहों से देखा। अच्छा, कैसी लड़की चाहिए मेरे बच्चे को? पारो ने उसकी जानिब देखा। लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? वो देखें, बिल्कुल ऐसी सेम टू सेम चलेगी, और डिटो कॉपी हो जाए तो फिर तो दौड़ेगी मम्मा। शाहज़ल ने आईने की जानिब इशारा किया जहाँ माँ पारा को अपना अक्स झलमलाता नजर आया। वो बज़ाहिर हंसती थी मगर दिल में एक खौफ सी उठी। जानती हो पारो, सुरगाम और नौशी की बेटियाँ वो तो बिल्कुल अपनी फूफी यानी तुम्हारा अक्स लेकर पैदा हुई हैं। यूँ लगता है इस घर में तुमने ही 2 बार और जन्म ले लिया है। आंखों और बालों का रंग भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। बेचारी नौशी हर लम्हे हर वक्त तुम्हें याद करके रोती रहती थी। शायद इसीलिए बच्चियां भी तुम्हारे जैसी पैदा की हैं। बड़ी वाली का नाम तो नौशी ने महापारा ही रखा था, मगर फिर हवेली में तूफान मच गया, इसलिए अब बच्ची को कुछ और कहते हैं, मगर नाम उसका अब भी महापारा ही रजिस्टर्ड है। पगला, पारो ने उसे बालों से पकड़कर घुमा डाला, जो बाप के सामने उसे बार बार चिमटे पर मजबूर किए दे रहा था, और बाप खुद बेटों की तारीफ उसके लिए एजाज़ समझकर कबूल कर रहा था। हाँ ना मम्मा, ऐसे ही शहद जैसी आंखें, आपके जैसे सुनहरे रापंजल की तरह लंबे बाल। बादल ने भी टुकड़ा लगाया। ऐसा दुनिया में सिर्फ एक ही मास्टरपीस है और वो तुम लोगों के डैड के पास है, इसलिए खुशफहमियों की वादियों से बाहर निकल आओ मेरे बच्चों। अल्तमश सुल्तान ने साफ उन्हें चिढ़ाया था और वह सचमुच तब भी गए थे। मामा जानी, इन बुजुर्गवार को इग्नोर करें और हमारी फरमाइश पर तवज्जो दें। मजाक छोड़ो शाजल, और बताओ तुम लोग कहीं जा रहे हो? इतनी तैयारी कर रहे हो? मापारा ने अब बादल से पूछा। हम पहले लाहौर जाएंगे, उसके बाद कुछ ब्रेक और सैर व तफरीह के लिए शाजल यूरोप जाएगा और मैं एक्सपोर्ट अटेंड करने के लिए कोरिया जाऊंगा, फिर वहां से शाजल को ज्वाइन करूंगा। 1-2 मंथ के बाद हम इकट्ठे ही वापस आएंगे। बाजिल अल्तमश सुल्तान ने अपना लहजा बिल्कुल हमवार रखा था। बेतासर चेहरा के बाप इंतहाई बारीकी से उसकी संजीदा गंभीर पुरस्रार स्याह आंखों के गहरे राज लम्हों में पा लिया करता था। अब भी अल्तमश ने अपने गबरू बेतहाशा वजही बेटे पर एक जांचती सी निगाह डाली थी। लेकिन क्यों? पहले एक घर से गायब होता है तो दूसरा तो मेरे पास रहता है, अब दोनों इकट्ठे क्यों जा रहे हो? पारो रूहान सी हुई और एहतजाजन अल्तमश की जानिब देखा, जो दोनों बेटों को गहरी निगाहों में रखे हुए था। मेरी भोली प्यारी मम्मा जानी, अशमल और जाजिम को स्कूल से छुट्टियां हो गई, बोर्डिंग वालों से मैंने बात कर ली है, अब हमारी जगह वो आपके पास रहेंगे ना। आपको तो मालूम है दोनों तूफान हैं, घर वालों का जीना हराम कर देंगे। ऐसे में थोड़ा सा रश कम हो जाएगा, और यूं भी ये आपका नमूना बेटा जितना शादी के लिए तावला हुआ जा रहा है, कोई अंग्रेज़ खातून ना साथ चिपका लाए, इसलिए इसकी निगरानी आपके पास तो बहुत ज़रूरी है ना। बाजिल सुल्तान ने इंतहाई संजीदगी से गैर संजीदा बात की। शाजल भाई को घूर कर रह गया, जबकि पारो अशमल जो कि 10th स्टैंडर्ड में था और जाजिम जो 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था के आने का सुनकर कदरें बहल गई थी। शाजल माँ पारा से बातें करते हुए कमरे से बाहर निकल गया तो बादल पूरी तरह अपने बाप की जानिब मुतवज्जह हुआ। डैड? हाँ, कल आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी ना? बादल ने अपना लहजा सरसरी किया। नहीं तो? अल्तमश बेख्तियार हामी भरते फिर बुरी तरह चौंका था। वो तो 3 मंथ के बाद है। डोंट यू रिमेंबर? अल्तमश ने उल्टा उसी से सवाल पूछा। मैंने बाई चांस बड़े पापा के पास आप दोनों का निकाहनामा देखा था, उस पर तो कल की डेट मेंशन है। बादल ने कहते गहरी निगाहें अपने बाप पर जमाए रखी, मगर अल्तमश के चेहरे पर शकन तक न आई। निकाह 3 माह पहले हो गया था, रुखसती 3 माह बाद हुई थी। अल्तमश ने लापरवाही से कहा। यहाँ कराची में हुआ था निकाह?
इस सवाल पर अल्तमश ने चूक कर मोबाइल से निगाहें हटाकर बेटे की जानिब देखा था, जो इस वक्त गैर मामूली संजीदा दिखाई दे रहा था। खैरियत, आज तुम क्यों इतनी तफ्तीश कर रहे हो? वैसे ही कल मम्मा को रोते हुए देखा तो पूछ लिया। बाज़िल कलेजा भी लापरवाह सा था। तुम्हारी मम्मा के बाबा की डेथ हो चुकी है तो उन्हें याद करके रो रही होंगी माँ। अल्तमश ने अपनी दास में से हासिल वजाहत दी, मगर उसे क्या मालूम था कि उसकी सगी बहन ने अपनी जाने कौन सी अना की तस्कीन की खातिर या किसी मकसद की खातिर उसी के बेटों के दिल में बचपन से लेकर अब तक उनके ननिहाल खिलाफ इस कदर जहर भरा था कि अल्तमश को पता ही न चला कब इस जहर से उसके बेज़रा बेटों की रगें नीली हो गई हैं और अपने ननिहाल से नफरत और दुश्मनी उनके लहू में गर्दिश कर रही है। और मम्मा की मम्मी मतलब हमारी नानो। बाज़िल, लीव दिस टॉपिक नाउ। अल्तमश ने अपनी बार नागवारी से कहा तो बाज़िल लब भेंच कर रह गया। बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम लोगों को सिर्फ एक बात सिखाई, वो ये कि हम सब तुम्हारे ननिहाल वालों से नहीं मिल सकते। कभी इस बात का जिक्र अपनी माँ के सामने मत लाना। ये टॉपिक उन्हें सिवाय तकलीफ, अजियत और आंसुओं के कुछ नहीं देगा। तो आज आखिर क्यों ये सब खरीद रहे हो? डैड, मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि आखिर हम क्यों नहीं मिल सकते उनसे, क्यों? मम्मा उन्हें याद करके इतना क्यों रोती हैं? उनकी तकलीफ, अजियत और आंसुओं की वजह ही तो जाननी है मुझे। बाज़िल उलझ गया। लीव इट बाज़िल, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, तुम भी मत करो प्लीज़। अल्तमश का लहजा कुछ ऐसा था कि बाज़िल को खामोश हो ही जाना पड़ा। जोनिया अपने सफरी बैग में अपने कपड़े रख रही थी जब वह हवा का झोंका बनी कमरे में दाखिल हुई थी और उसे पैकिंग करते देख वो ठटक कर रुकी। तुम कहीं जा रही हो? तानिया ने पथरीले से लहजे में पूछा तो जोनिया ने मुड़कर अपनी जुड़वा बहन को देखा, जो शक्ल सूरत, रंग रूप और जिसामत में हूबहू उसकी कॉपी थी, मगर मिजाज, किरदार, अखलाक व आदात और फितरत में इस कदर तजाद था कि जैसे दिन और रात। अगर जोनिया सफ़ेद थी तो दानिया स्याह। अगर जोनिया कम गो, सुलझी हुई, सोबर और डेसेंट लड़की थी तो दानिया उतनी ही बोल्ड, सरकश, ज़िद्दी, बदमिजाज और उखड़। हाँ, परी लोगों के साथ लाहौर उनकी खाला के बेटे की शादी में जा रही हूँ। चौधरी ज़रग़ाम बाबा ने बाबा जान से खुद इजाज़त ली है, सोनिया ने मुख्तसरन बताया, मगर उस बात पर सामने वाली के चेहरे के तासरात इस कदर आतशी और गैज़ व ग़ज़ब लिए हुए थे कि जोनिया निगाहें चुराकर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। वाह, बहुत खूब। मेरी थोड़ी सी लग़ज़िश पर यहाँ मेरी ज़िंदगी को जहन्नम से भी बदतर बना दिया गया है। मैं हवेली से बाहर नहीं जा सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, कोई दोस्त नहीं बना सकती। इस मनहूस हवेली में कैद हो गई हूँ मैं, और तुम्हें पूरे जहां में आवारा फिरने का परमिट दिया हुआ है बाबा ने। दानिया, मुंह संभाल कर बात करो, जोनिया ने नागवारी से कहा था। वो थोड़ी सी गलती थी, इतनी सी उम्र में शहर के आवारा तरीन लड़के से राह रस्म बढ़ा कर रखी थी तुमने, ऊपर से सबसे छुपा कर चोरी मोबाइल रखा हुआ था, और तुमने इस बात का ढंढोरा पूरे ज़माने में पीट दिया। तुम्हें क्या तकलीफ थी अगर मैंने बोल दिया था कि आइंदा नहीं करूँगी, लेकिन माँ बाबा को मत बताना। लेकिन तुमने हमेशा से मुझे नीचा दिखाया, मुझसे नफरत की और माँ बाबा को बता दिया। उस दिन से बाबा ने मेरी शक्ल तक न देखी, और जो सज़ा दे रखी है वो अलग। मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी यहाँ, और सबकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम पछताओगी क्योंकि मुझे नफरत है तुमसे। वो झटक पड़ी और इतने महीनों की भड़ास आखिर निकाल ही दी। जोनिया ने नम निगाहें लिए उसकी जानिब देखा। कुछ कहने को नहीं था। मैं तुम्हारी दुश्मन तो नहीं, तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारा बुरा कैसे? ओ प्लीज़, अपनी ये इमोशनल बकवास बंद करो। मुझे तुम्हारी किसी बात में दिलचस्पी नहीं, वो कठोरपन से बोली थी। तुम सच में मुझसे नफरत करती हो? जोनिया ने अपनी आंखों की नमी साफ की। दानिया ने सजाया अंदाज में उसकी जानिब देखा और खामोश ही रही। जोनिया ने अपने आंसू साफ किए और गहरी सी सांस खारिज की। तुमने फिर से मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है? रात तुम यूज़ कर रही थी ना? जोनिया ने कहते बगौर उसका चेहरा देखा, जो बुरी तरह गड़बड़ा गई। तुम्हें दिन में भी ख्वाब आ रहे हैं? अगर रख भी लूँ तो हर्ज ही क्या है? तुम्हारे इस दक्यानुसी बैकवर्ड जाहिल वडेरे चौधरी ज़रग़ाम आलमगीर बाबा के पागलपन और जहालत की वजह से ये गांव वाले मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टीवी, केबल और डिश के बगैर कब तक ऐसे कीड़े मकोड़ों वाली ज़िंदगी गुजारेंगे? मुझे तो समझ नहीं पूरे गांव को क्या पड़ी है उनकी बात मानने की, और ख़ासकर बाबा, उन्होंने क्यों उनकी हाँ में हाँ मिला रखी है? उसके लहजे में नफरत भरी कीना पर और बुग़्ज़ की बू आ रही थी। जोनिया हैरत और सदमे से गंग रह गई। उसके दिल में चौधरी बाबा के खिलाफ इस कदर जहर भरा हुआ था, उसे आज पता चला। दानिया, इतना जहर उगलते शर्म तो नहीं आ रही तुम्हें? मत भूलो इस गांव में तो बिजली की भी सहूलत मौजूद नहीं थी।
चौधरी बाबा की ही सरतोड़ कोशिश से यहाँ सोलर एनर्जी से सबके घरों में बिजली है और हम सब सोशल, इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया यूज़ नहीं करते। हम सब खुद इन खराफात से दूर एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने हमारी गर्दनों पर तलवार तो नहीं रखी हुई, ये तो एक खामोश मुआहिदा है जो गाँव की तमाम बच्चियाँ मोबाइल फ़ोन्स ना रखकर अपना फ़र्ज समझकर निभा रही हैं। हाँ, परी और फरजान, आप भी अपने बाबा की वजह से पाबंद हैं। उन्हें मोबाइल फ़ोन रखने की या टीवी वगैरह देखने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। उन्हें इजाज़त नहीं तो इस बात पर एतराज़ भी बिल्कुल नहीं। ये पाबंदी हम पर नहीं है। मगर अपने दोस्तों की वजह से मैं अपने माँ बाबा और अपने चौधरी बाबा की ख्वाहिश के एहतराम की वजह से इन चीज़ों को हम भी इस्तेमाल नहीं करते तो क्या मसला है? सोनिया जब बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई, जबकि दानिया के तासरात आप भी नफरत और हकारत से लबरेज थे। माई फुट, ये घुटन सीधा बेजा पाबंदियाँ तुम ही अपने गले में तोक की सूरत लटकाओ। मुझे कोई शौक नहीं, ना ही मैं किसी की पाबंद हूँ, आज़ाद हूँ मैं। ये दुनिया, इसकी मसलहतें, रस्म व रिवाज और रिवायतें मेरी जूती की नोक पर। उसके बागी लहजे में सदा की बेनियाजी और लापरवाही थी। जोनिया अफसोस ही कर सकती थी, सो किए गई। इससे बहस करना ही फजूल था। और खून वाले इंसिडेंट के बाद तो वो दोनों आपस में बहुत कम ही हम कलाम होती थी। यूं भी जोनिया उसकी तंज और तहकीर आमेज़ बातों से खाइफ ही रहती थी, इसलिए ज़्यादातर वक्त माँ के कमरे में घुसी रहती। अब भी वो उसे नज़रअंदाज करती कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि दानिया उसकी पैकिंग देख देख कर हसद और रकाबत की भट्टी में झलस रही थी। परी, मेरा दिल कर रहा है ये वट्टा मार कर तुम्हारा सर खोल दूं। वाकार ने दांत खचखचाकर कहा तो परी ने हिजाब में से आंखें पटपटा कर दांत निकाल कर दिखाए। अगस्त के वक्त में सावन भादों की बारिशों की वजह से मौसम काफ़ी मरतूब हो चुका था, लेकिन फिर भी चिलचिलाती धूप में लारी अड्डे तक आते आते ही उनके दिमाग पोले कर दिए। मकार, निशक, अनमा, सोनिया और परी बाली भाई यानी बिलाल, सजावल, हुसैन के हमरा लारी अड्डे पर गाड़ी के इंतजार में खड़ी थी। खजरान आपी और चौधरी पापा हमारे सामान के साथ कितने मज़े से अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए ते एनू पता नहीं केड़े कीड़े ने वड्या सी जेड़ा अगस्ती पकड़ी गर्मी जलील कराता। निशु सबसे ज़्यादा तपी हुई थी, इसलिए परी को बेनक सुना डाली। क्या है यार निशु, खुद तो लोग आती जाती रहती हो ना लाहौर। अगर आज हम एडवेंचर और थ्रिल के तौर पर इस्लामाबाद तुम्हारे साथ लोकल जा रहे हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? पापा से कितनी मिन्नतें करके इजाज़त ली है, अब मूड ख़राब ना करो। मैं तो ये सफ़र एंजॉय करने वाली हूँ। परी ने जो अपने खराफाती प्लान पर अमल कर डाला था, सबसे ज़्यादा पुरजोश थी। कभी लोकल सफ़र नहीं किया था, आज वो ये भी कर गुजरने वाली थी। समीना खाला के सबसे छोटे सपूत जुनैद भाई की शादी थी, जिसमें वो सब मदऊ थे। बरकत बुआ और अब्बी जान तो पहले ही नहीं जा रहे थे। बेजान मुमताज़ बेगम की अचानक तबीयत खराबी की वजह से नौशी भी गाँव ही रह गई। बाकी सब ने अपनी तैयारी की थी और अब मंजिल की जानिब रवां दवा थे। परी ने अपने बाबा से इसरार किया था कि वो लोग आज पहली मरतबा लोकल सफ़र करना चाहती हैं। ज़रग़ाम ने बिलाल को उनके साथ आने का बोलकर इजाज़त दे दी थी। हाइयस आ चुकी थी, वो लोग सीट्स लेकर गाड़ी में बैठ गईं और सफ़र शुरू हो चुका था। अन्मा की ज़बान में खुलचली हुई, शुक्र है मेकअप नहीं किया। इस गंदम की कटाई के बाद खेतों में लगाई जाने वाली आग की उड़ती राख ने तो हमें भूत नगर की रानियां बना दिया है। कौन सी ब्यूटिशियन, मैं तो रह ही गई। महकार ने परेशानी के आलम में अपने मुंह पर हाथ फेरा। उसे शायद रूप ने घर सुनाई दिया था। नहीं मेरी जान, इस सर्विस से तो तुम भी पूरी तरह मुस्तफ़ीद हो चुकी हो। मशहूर ब्यूटिशियन ये उड़ती राख है और तुम लोग इस वक्त आहट की डायने लग रही हो। परी ने बेनियाजी से कहा। हाँ, और तुम तो जैसे कोहे काफ की बग्गी पर सवार हो। जोनिया जलकर बोली। चुप करके नहीं बैठ सकती तुम लोग। बाली भाई ने उन्हें डिपटा था, जो अन्मा के साथ उनसे अगली सीट पर बैठा था। बाली भाई की रिपट पर उन्हें थोड़ी सी शराफत का मुजाहिदा करना पड़ा, मगर बेदफतन मकार, जो काफ़ी लड़ झगड़ कर खिड़की वाली सीट पर बैठी थी, अपनी जगह से 1 फुट ऊपर उछली। मकार, गाड़ी मोटरवे पर है, धक्के नहीं लग रहे बेवकूफ़। परी ने दांत पीस कर कहा कि तभी वो फिर उछली। अब ये बात जोनिया और नशक भी मुतवज्जा हुई थी। क्या हुआ? ये पीछे वाला जहानवी उधेड़ उमर पापा खिड़की से पहलों में हाथ मार रहा है। महकार ने सरगोशी की। वो तीनों नीचे मुंह करके हंसती लूट-पुट हो गई, लेकिन वो भी अपने नाम को महकार थी, इस तरह की सूरत हाल से निपटने में माहिर, क्योंकि उन्होंने देखा कि महकार ने अपनी चूड़ी तोड़ी और उसकी नोक को हाथ में थाम लिया, और इससे पहले कि बाबे का हाथ फिर कमज़र्फ दुश्मन की तरह उसकी कमर की सरहदों से छेड़खानी करता, उसकी चूड़ी ने दिफाई सिपाही की तरह दिफा करते हुए बाबे को बाबी या नानी याद दिला दी। फिर इस्लामाबाद तक रावी ने चैन ही चैन लिखा। इस्लामाबाद पहुंचने पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था
जहाँ से पापा गड्ढे से सिंह की तरह गायब थे। सद शुक्र कि उन्हें लेने सरकाम आलमगीर ने पहले ही गाड़ी भिजवा दी थी, तो वो पुरसुकून होकर अपनी मंजिल के लिए रवाना हुई। गाड़ी के पहिए अपनी पूरी ताकत से चरचराए थे। नूर हवेली के फाटक से गाड़ी अंदर सुर्ख ईंटों की रविश पर रुकी थी। वो स्याह शलवार कमीज के ऊपर डार्क ब्राउन वेस्ट कोट पहने अपनी पूरी आन शान बान के साथ ब्लैक लैंड रोवर की पिछली सीट पर विराजमान था। ब्लैक गॉगल्स लगाए सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर पथरीले से तासरात थे। सब्ज आंखों की क़यामत खेज पुरस्रार स्याह चश्मे के पीछे छुपी हुई थी। पीर सरकार? वो ख्यालात की जाने कौन से रेशम में उलझा था जिसका सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। फाइज को उसे फिर से मुखातिब करना पड़ा। सरकार, आपने यहाँ आने का कहा था, आ गए, अब अगला हुक्म? फाइज ने मुअद्दब लहजा अख्तियार किया, जबकि उसकी बात पर सुबेजान अमजद जलाल अली सरकार ने उसकी जानिब यूँ देखा जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि फाइज ने उससे क्या कहा है। अपने सामने अछड़ती सी निगाह सुर्ख ईंटों से बनी इस हवेली पर डाली। वो आम दिनों में यहाँ नहीं आता था, महीने में बस एक मखसूस तारीख को, तो फिर आज 2-3 दिन बाद ही यहाँ क्यों आया था? और अंदर अपने सबसे बड़े दुश्मन को क्या कहेगा कि वो यहाँ क्यों आया है? हाँ, एक उलझन तो थी जिसे उसे सुलझाना था, उसकी हकीकत मालूम करनी थी। तो फिर मैं मान लेता हूँ कि ज़ुबेजान अली सरकार ये मान लेता है कि तुम्हारी जुर्रत ने मेरी खामोश जामिद साकित जज्बात की नदी में कंकड़ फेंक कर उसमें अर्ताश पैदा कर दिया है। तुम्हारी पेशकदमी ने मेरी नींदों में सुराख किया है। अब मुझे दरअसल अपने तमाम सवालात के जवाब यहाँ से चाहिए। ज़ुबेजान ने गहरी सांस खारिज की और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। फाइज, अंदर मतदान खाने में इतला दो कि मैं आया हूँ, ज़ुबेजान ने संजीदगी से कहा। फाइज सर हिलाते अंदर जाने लगा। जब ज़ुबेजान अली सरकार ने ठटक कर हवेली के फाटक की जानिब देखा, हाँ, वो वही तो थी जो किताबें और एक रजिस्टर हाथ में पकड़े हवेली के फाटक के अंदर दाखिल हुई थी। जोनिया या जुनैद? ज़ुबेजान अली उसकी जानिब देखे गया, जो एक सरसरी सी नज़र उस पर डालकर सीधी हवेली के अंदर की जानिब जा रही थी, और देखते ही देखते निगाहों से ओझल हो गई। लेकिन ये क्या? जबकि इधर ज़ुबेजान अली की जज्बात और एहसासात पर एकदम ठंडी बर्फ़ जैसी ओस पड़ गई। वो पूरी तरह झंझलाया और पहलू बदल कर रह गया। कुछ तो था जो मिसिंग था। उसे सामने पाकर भी दिल सीने में खामोश सा था। एहसासात में कोई तब्दीली रोनमा नहीं हुई। दिल नहीं गुदगुदाया। वो आंखों के सामने थी, मगर आंखों की प्यासी धरती जैसे तीत की बूंद तक ना पा सकी थी। ऐसा क्यों था? उसे कुछ समझ ना आया, लेकिन यहाँ आकर बेतहाशा मायूस ज़रूर हुआ था। सरकार, नूरुल ऐन पीर सरकार मतदान खाने में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, नूरुल ऐन के ख़ास वफ़ादार लतीफ़ ने ज़ुबेजान को कहा, तो उसके माथे पर बेशुमार बल पड़ गए। दिल किया यहाँ से भाग जाए। वो दांत कचकचा कर रह गया। अब अंदर इतला भिजवा दी थी तो जाए बगैर गुजारा नहीं था। वो भारी कदम उठाता कुशादा सी बैठक में दाखिल हुआ, जहाँ नूरुल ऐन अली हिस्बे मामूल एक इस्लामी किताब हाथ में थामे बैठे थे। उसे देख खुश दिली से मुस्कुराए। आओ आओ ज़ियान, कैसे हो? सब खैर खैरियत है ना? नूरुल ऐन के चेहरे पर हिस्बे मामूल एक आसूदगी भरी मेहरबान सी मुस्कुराहट थी। आप अच्छी तरह जानते हैं, आपका ये खुशामदी लहजा मुझ पर बिल्कुल असरअंदाज नहीं होगा। वो बेतासर चेहरा लिए काफ़ी बदलिहाजी से बोला था, मगर नूरुल ऐन की मुस्कुराहट जों की तू बरकरार थी। तो फिर खैरियत, यहाँ कैसे आना हुआ? नूरुल ऐन की हैरत बरकरार थी। वैसे ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपको याद दहानी करवा दूँ। क्या मैं मज़ीद इंतज़ार हरगिज़ नहीं करूँगा। शादी कर रहा हूँ तो पीर बीबी को रखने को कम अज़ कम छोटी हवेली के साइन शुदा पेपर मुझे हर कीमत पर, हर हाल में मुझे इन्हीं दिनों चाहिए, नहीं तो नतीजे के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। वो जैसे आग के ढेर पर बैठा गुर्राया था। नूरुल ऐन ने एक अचरती नज़र उसके सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर डाली, जो सन ग्लासेस हाथ में थामे टांग पर टांग जमाए इसरारी अंदाज में पाँव हिला रहा था। देखो ज़ुबेजान अली, नूरुल ऐन अभी कुछ कहता जब लतीफ़ हवेली के अंदरूनी दरवाजे से दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुआ। अंदाज अजरत भरा था और हाथ में एक मोबाइल फ़ोन था। पीर सरकार, आप अपना फ़ोन अंदर छोड़ आए थे। चौधरी जी का फ़ोन है, आपने शायद उन्हें कहा था कि जोनिया धी के पहुँचते ही आपको फ़ोन करें। धीरानी आपसे बात करना चाहती है। लतीफ़ के कहने की देर थी जब वहाँ बैठे एक शख्स को हैरत का एक ज़ोरदार झटका लगा। लम्हे भर में तमाम बेनियाजी और लापरवाही हवा हुई थी। मतलब उसने जिसे बाहर देखा था वो नहीं थी, कोई और थी। उसके कान खड़े हुए और वो पूरी तरह अब नूरुल ऐन की जानिब मुतवज्जा हुआ था, जो अपना फ़ोन कान से लगाए अब बदराना शफ़क़त चेहरे पर सजाए अपनी नख्त जिगर से बात कर रहा था। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, खैर खैरियत से पहुँच गई? कोई परेशानी तो नहीं हुई?
صحیح ہے, باقی سب بھی خیر خیریت سے ہے, بس اپنا خیال رکھنا اور چودھری بابا کو بالکل تنگ نہ کرنا. بڑی بیٹی جہاں لے جائیں وہاں گھوم آنا, انکار مت کرنا. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھنا میرا بچہ, اللہ نگہبان. نور العین نے فون رکھ دیا تھا اور زویزان علی سرکار کے اعصاب جیسے تن چکے تھے. لہو میں اشتعال ٹھوکریں مارنے لگا. تم کچھ کہہ رہے تھے زویزان؟ نور العین نے پھر سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انتہائی غیر متعلقہ شخص سے بڑا غیر متوقع سوال تھا. نور العین کا چونکنا تو بنتا تھا. کیا؟ کافی غیر یقینی سے پوچھا گیا, کیونکہ اس نے کبھی اس کے خاندان میں کبھی دلچسپی نہ دکھائی تھی. میں نے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جرمن تو نہیں بولی جو آپ کو سمجھ نہیں آئی. وہ حسب معمول انگارے ہی چبا رہا تھا. نور العین نے گہری سانس اپنے اندر کھینچی. 4 بچے ہیں. سب سے بڑا شرجیل ہے جو نیوی میں ہوتا ہے, اس وقت کراچی میں ہے. پھر 2 جڑواں ہم شکل بچیاں زونیا اور دانیہ ہیں جو پڑھ رہی ہیں, اور پھر چھوٹا بیٹا جو شہر فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہے. تسلی بخش جواب تھا, مگر سامنے والا مطمئن نہیں ہوگا. ابھی فون پر بات کر رہے تھے, بچی کو کہیں بھیجا ہے کیا؟ یہ سوال کرتے اس کے جسم و جان میں شعلے سے بھر گئے تھے. ہاں, زونیا میری بہت پیاری سی گڑیا اسلام آباد گھومنے پھرنے گئی ہے. نور العین نے اپنا لہجہ حت المکان سرسری سا رکھا تھا. وہ جانتے تھے سامنے والا یہ سوال کیوں کر رہا ہے. یقیناً پاک حویلی کا کرتا دھرتا ہونے کی وجہ سے اس کی سوچ بھی اپنے بڑوں کی طرح محدود ہوگی. کس کے ساتھ؟ وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا, اور اس کے لہجے میں موجود کاٹ کو نور العین علی بخوبی سمجھ رہا تھا. اپنے دوستوں کے ساتھ. نور العین کا اطمینان اسے مزید بھی تنگی لگا گیا. بہت خوب, تو اب پاک حویلی کی سید زادیاں غیروں کے ساتھ شہر میں سڑکیں ناپتے پھریں گی. دماغ خراب ہے آپ کا؟ حویلی کے اصول, روایات, رسم و رواج کوئی معنی نہیں رکھتے آپ کے لیے. وہ تو گویا بھڑک ہی اٹھا, جبکہ نور العین اس کا غصے و اشتعال سے تمتماتا سرخ چہرہ دیکھے گیا. بقول تمہارے والد محترم کے میرے بچے تمہارے خاندان کا حصہ نہیں. ان کے نانا نے ایک معمولی مریدنی سے شادی کی اور خون میں ملاوٹ کر دی, اس لیے ان پر حویلی کے رسم و رواج لاگو نہیں ہوتے. نور العین علی کی لاپرواہی عروج پر تھی. وہ آپ کا خون ہے, وہ دانت پیس کر بولا. یار مت خون جلاؤ اپنا, تم اپنی حویلی کو دیکھو, میں اپنی بچیوں کو دیکھ لوں گا. وہ کیا کہتے ہیں, چل کرو. یہ لطیف نے کب سے لوازمات آگے رکھے ہوئے, کم از کم چائے تو پی لو. بہت شکریہ, مجھے کہیں جانا ہے, چلتا ہوں. وہ رکا نہیں تھا, باہر نکلتا چلا گیا, اور جس انداز میں باہر نکلا فائز دیکھتے ہی دہل گیا. وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو جلدی سے اپنی جیب سے فون نکالا. فون میں میسنجر کھولا تو وہ آن لائن شو ہو رہی تھی. ویئر آر یو؟ زویزان علی نے بڑی بےتابی سے بڑے دھونس بھرے لہجے میں سوال کیا تھا. میسج سین ہو چکا تھا. زویزان نے بری طرح اپنے کمبڑی سلائی, اور اسے اگلا لمحہ اس پر بہت بھاری ثابت ہوا تھا. کرنٹلی فار آؤٹ آف یور ریچ. بڑا زمیانی سا جواب تھا. اس کے بعد فوراً وہ آف لائن ہو گئی تھی, اور اتنی سی دیر میں اس کی ذہنی حالت جیسے تباہ ہوئی تھی. زویزان نے موبائل پوری طاقت سے دوسری سیٹ پر رکھا تھا, جبکہ فائز کی آنکھوں سے اس کا بھانبر کی طرح جلتا وجود دیکھے گیا. گاڑی چلاؤ. وہ بولا نہیں, دھاڑا تھا. پاک حویلی جانا ہے یا قصر نور؟ فائز نے منہ کھولنے کی گستاخی کی. اسلام آباد. 2 لفظی جواب تھا. اس کے بعد وہ خاموش ہو کر گاڑی سے باہر دیکھنے لگا, جبکہ فائز کو حیرت کا جھٹکا لگا, مگر یہاں سوال کرنے کی جرأت کس کو تھی؟